मनीष जी शुरू करें। जी मैम। Good evening to all. Myself Manish, Honorary Secretary for the ISTD Chandigarh chapter. I welcome you all on behalf of ISTD Chandigarh and national chapters. आज का जो हमारा टॉपिक है ज्ञानशाला विजडम थ्रू बुक्स का अ टाउन लाइक एलाइस। हम क्या नाम है गुणमाला मैम को ऑफिशियल वेलकम के लिए इनवाइट करें। I just share a few things about the ISTD Chandigarh and the national chapter. We are almost 50 years old organization. We are celebrating our Golden Jubilee year this year. People are becoming our member through different means. One, the memberships, which we are providing at the 50% as the Golden Jubilee year. Second, we are running one of the best diploma program for our HR fraternity and the fraternity from the learning and development. This is the only program which is national and internationally accredited, and it's for 18 months. And at present, we are running it on the virtual. We provide the 6 months internship also. It is value addition to every HR person and person from the learning and development, because we provide the content also, pedagogy also, and different learning styles. So the people who are aspirant towards the creating organizational differences and through and the people's potential, this is one of the best program for them. Taking the next to the Gundala ma'am. Ma'am, please take it forward and welcome our audience and Tanya ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच मनीष जी। मनीष जी ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमारा ISTD क्या कर रहा है और हम कैसे उसके पार्ट बन सकते हैं। इट्स अ 50-year old ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा मैं अपने इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहूंगी। व्हाट इज ज्ञानशाला? विजडम थ्रू बुक्स हैज बीन इनिशिएटेड। दिस इज अ चंडीगढ़ ISTD चैप्टर इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम हर बार एक किताब लेते हैं और उस किताब के बारे में कुछ बात करते हैं। Those who can't read that book, they can at least understand and they can pick up some pearl of wisdom out of that. And जो लोग बुक्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और उसमें से कुछ चीजें नोट कर लेते हैं, ऐसे लोग कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, और इसको हम एक और वर्ड भी कह सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग सेशन। जो कुछ आज हमने इनवाइट किया है अपने सेशन में डॉक्टर तान्या जैन को। Tanya holds a degree in psychology and she has the experience of 18 years, enriching experience. She has worked in the organization as well as now she is an independent consultant and therapist. Her area of interest is health professional and she is also a book lover. She has read this book, which is the book known as A Town Like Alice. And during the discussion, she will take you the roller coaster ride of how the book has been written. It is written in 1950. What are the pros and cons and how the characters are framed, and what is the beauty the writer has framed that characters. All these things will be shared with you in this session. So welcome to Tanya. And welcome to Sachinji. Sachinji is going to take the session forward and he'll work as a moderator. Over to Sachinji. Thank you, ma'am. Thank you very much for introducing this program and introducing Dr. Tanya. दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पिछले सेशन में हमने ज्ञानशाला जो कार्यक्रम है वो शुरू किया था, तो उसकी शुरुआत मैंने सफदर हाशमी के एक पोएम से की थी कि किताबें बातें करती हैं। आज जब मैं इस सेशन के बारे में सोच रहा था तो 2009 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला हर्टा म्यूलर को, जर्मन राइटर थी। उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिलने के टाइम जो उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच थी, उसकी जो क्लोजिंग लाइन है उससे मैं आज शुरू करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स वो जर्मन में है, उसका अंग्रेज़ी अनुवाद कुछ इस तरह से है कि लिटरेचर स्पीक्स विद एवरीवन। आपको याद होगा सफदर हाशमी ने कहा था किताबें बातें करती हैं। हर्टा म्यूलर कह रही हैं कि लिटरेचर स्पीक्स विद एवरीवन इंडिविजुअली। इट इज़ अ पर्सनल प्रॉपर्टी दैट स्टेज इनसाइड आवर हेड्स and nothing speaks to us
as forcefully as a book which expects nothing in return other than that we think and feel. सोचें और महसूस करें, इसके अलावा किताबें हमसे वापसी में कुछ नहीं चाहती. पिछली डिस्कशन में हमारा जिस किताब को हमने चर्चा की थी, वो किताब थी हाउ विल यू मेजर योर लाइफ. वो कहने को एक नॉन फिक्शन बुक थी और उसमें बहुत सारे लेसन्स थे. आज हम जो किताब डिस्कस करने वाले हैं, उस किताब का नाम है टाउन लाइक एलिस, जो कि एक फिक्शन है. तो ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है कि इस तरह की सीरियस ओकेजन पे हम फिक्शन क्यों डिस्कस कर रहे हैं. कहते हैं व्हाट रियलिटी ऑब्सक्योर्स फिक्शन रिवील्स. रियलिटी जो छुपा लेती है, फिक्शन वही प्रकट करती है. और बहुत सारी चीज़ें आपने महसूस किया होगा कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो स्टोरीज़ हैं वो उनको एक फॉर्म देती हैं. तो आज हम उन्हीं तरह की एक स्टोरीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे. और आज हमारे साथ डॉक्टर तान्या जुड़ी हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूं. और उनसे एक सवाल पूछूं उसके पहले, चूँकि उनकी इंटरेस्ट एरिया जो है वो शी ऑल्सो अ ग्रेट पेट लवर. स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करती हैं. तो एक अमेरिकन कॉमेडियन हुआ बहुत इम्पोर्टेंट, ग्रूशो मार्क्स. उसने एक थोड़ा विटी टोन में और एक सीरियस बात ये कही थी कि इंसान का जो द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन आउटसाइड अ डॉग इज अ बुक and inside the dog it is too dark to read. So with this lighter note, I would ask Tanya the first question. How did you pick up this book which was written 70 years ago? आपने ये किताब चुनी कैसे? Thank you so much, Dr. Sachin. And बहुत interesting ये question है, क्योंकि आजकल ये इतनी पुरानी है, 1950 में पब्लिश हुई थी. मेरे को फर्स्ट टाइम एज अ टीनेजर माय फादर वांटेड टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट, तो इसलिए उन्होंने किताबें इंट्रोड्यूस करनी शुरू की. ये ऑथर के बारे में, नेवल शूट के बारे में बताया. दिस वाज नॉट माय फर्स्ट नॉवेल इन ऑथर से रिलेटेड. इट वाज व्हाट हैपेंड टू द कॉर्बेट्स. और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे एज अ टीनेजर, हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में. एंड दिस नॉवेल वाज शोकेसिंग कि वहाँ पे एक कपल, एक यंग कपल, हाउ देयर कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक रियलाइजेशन आता है, और पूरा ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर था. इनफैक्ट उनकी पूरी रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होती है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. एंड द नेक्स्ट बुक आई टुक वाज अ टाउन लाइक एलिस. एज अ टीनेजर, अ टाउन लाइक एलिस वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट, कि हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज, एट द सेम टाइम हाउ सिंपल ऑर्डिनरी है कि एनीबडी कैन रिलेट टू. ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड. सिंपल सर्कमस्टांसेस ने उसको कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया, एंड हाउ शी मूव्ड ऑन. सो इनिशियली वो चीज इंटरेस्टिंग लगी थी, बट as years passed by and as I have read that book a lot of times again, now what inspires me is, one, the way the author has written, the simplicity. More than that, it is hope. It is how small little things can inspire us. The way the story has been written, जिस तरीके से that girl endurance of human spirit, किस तरीके से वो धीरे धीरे इंड्योर करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर सो इंस्पायरिंग, बिकॉज हम लोग केसेस देखते हैं एवरी डे. और जैसे यहाँ पे एक बैकड्रॉप दिया है इन द स्टोरी लाइन अबाउट वॉर, अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, कि कैसे ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं. सो एज आई ग्रू अप, आई अंडरस्टूड हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी चेंजेस, कैसे क्या सारी चीजें चेंजेस होती हैं. And I can relate to a lot of people, because I'm not saying there is war. All are struggling through certain things, and the only thing that shines through is the human spirit. Right. एक ability है कि
चेंज करना है, कुछ कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कुछ चेंज करना। आज ही दोपहर में आई हैड, सॉरी आई मीन, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अपने केस वर्ड कर रही हूँ। व्हाई दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज बिकॉज उनकी डॉटर ने, दिस इज एल्डरली जेंटलमैन, उनकी डॉटर ने अपॉइंटमेंट ली काउंसलिंग के लिए कि ही नीड्स काउंसलिंग, ग्रीवियंस काउंसलिंग, क्योंकि आई मीन ही इज जस्ट लूजिंग इट। एंड उनसे बात करके, लास्ट ईयर ही लॉस्ट हिज मदर, दिस ईयर February he lost his wife to cancer. But the thing that inspired me the most was कि सब कुछ मतलब वो झेल रहे थे कि उनका यही स्टेटमेंट था, मेरे बच्चे बाहर हैं, यहाँ सेटल्ड नहीं है, मैं अकेला रह जाऊंगा अब, लेकिन एक इच्छा that I want to live and I want to live happy, वो एक इच्छा से उन्होंने खुद आए। मतलब काफी टाइम से उनकी डॉटर बोल रहे थे कि यू नीड दिस थिंग, लेकिन आज वो खुद आए कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं जीना, मेरी वाइफ शायद मुझे ऐसे रोता हुआ नहीं देखेगी, और नहीं आई मीन उसकी स्पिरिट हर्ट होगी कहीं ना कहीं। सो वो जो एक चीज है, वो ये जो नॉवल है, इवन इफ इट इज फिक्शनल, it is beautifully depicted in it. So that is something really has always made me go back to this novel. Right. So I'm sure primarily this is a romantic novel. I'm sure the audience would be waiting to know the basic plot of it. But then let us savor them a bit more. And can you give us a bit context about the author first before we really get into the plot? Okay. See, author Nevil Shute Norway was basically an English novelist, and he was also an aeronautical engineer. And most of his novels he has written in the name of Nevil Shute, because somewhere he felt his colleagues will not take him seriously, that he's a writer. Again, it shows a strange mindset of that time, of that era. What I like about his novels are that they are written in a very simple language. They are very readable. More than that, they are, they're always introduced by a narrator. And unke jo characters he brings very ordinary people. I mean, they are accountants, there are doctors, they are, artisans. वो उस टाइप से इसको लेके आता है. They are not doing anything extraordinary, but the circumstances make them, achieve extraordinary things. So वो जो storyline है, that our Nevil Shute brings out beautifully. Then he brings out human relationships, the victory of humanity, the victory of human relationships, कैसे evolve होती हैं, कैसे perception change होता है in different difficult situations, dignity of labor. Then we talk about basically endurance of human spirit. उनकी बहुत सारी, after these two novels I have read practically most of his novels, so I'm a great fan of his. और हर novel में वो ये सारी चीजें बहुत strongly आती हैं, where he has talked about how a simple person is put into a difficult situation, but he comes out because it is a natural tendency of human spirit to rise. And like I can only give an example of this is like the last year, all said and done, it has been, I mean, people have fallen back. हम लोग वैसे काफी criticize करते हैं कि हाँ ठीक है, मास्क नहीं पहना, ये नहीं, but overall if we see the last year, एक साल के अंदर वैक्सीन आ गई. It is the rise of the human spirit. True. The people at any cost, चाहे समझा नहीं, but they did. So True. I mean, that is how that's how I define this author. So it's very evident that in all of his work, Nevil Shute basically talks about human spirit and undying spirit of humanity. Now let us get into the novel itself, and I'm sure our audience would be waiting to get the gist of the story, because the story is what binds us all together. So let's get into the story first. So can you summarize the plot for us? Yeah, sure. So now basically this novel can be divided into three plots.
First, it is a romantic novel between this girl, a young English woman, and falling in love with a Australian prisoner of war. She's also, you can say, a prisoner of war in Malay. जहाँ पे they start developing a friendship, and later on, that on the basis of that friendship, she goes looking for her love. She goes back to Australia to find that love. She doesn't know whether she'll find or not, but there is hope that maybe, since I have come to know from different people, I can find that love, I can find that person, I can connect again. Starting of the novel comes as that she is called by a solicitor, uh, you know, who's informing her that her uncle, whom she hardly knew, has left inheritance to her. But initially, वो inheritance उसके brother को जानी थी, her brother, because they believed that women could not take care of wealth. And a clause was kept that the entire wealth will come to her only when she's 35 years old. Because before that, it was assumed that they can't take care of themselves or the money or so much of wealth or whatever. So here, the first half of the novel is about the bonding of this elderly man who's now her lawyer, her trustee for that inheritance, and how this young girl who's, I think she's 23, 24, I mean, that is the age where she is, they develop a bond of friendship where the trustee takes the role of an advisor, a friend, a person who can, overlook onto her issues and give her the right advice because she has nobody else left. वहां से वो novel, how the friendship starts and evolves, it goes on to the second phase where she is narrating her issues, her story to the solicitor, that how she went to Malay, how what happened to them, what happened to the English women over there, how they were taken as prisoners of war when Japanese entered, and as Japanese entered, how they were taken from one camp, one area to the other. They walked miles and miles on end without food, without water, with children. How some of the children or some of the ladies, they perished. So वो पूरा एक है, and वो जो phase है, I find it very interesting because वहाँ पे slowly and steadily how they get accustomed to even the worst of the circumstances and trying to uplift each other, uplift the spirit. वो एक बहुत interesting है. It's not too much of melodrama, it's just plain simple. लेकिन वो plot पूरा Malay से related है, and interestingly, he has been inspired by true events, because actually this happened to a group of Dutch women, but not in Malay, in Sumatra, जहाँ पे they were taken, and a lot of them perished because practically for miles on end, 2 to 3 years, they were moving from one place to the other bare feet with hardly any food and water. So, वो जो चीजें incident where he is described, and the last phase is she is now having a certain amount of money and she wants to go back to the village जहाँ पे last they spent time, and she wants to gift. वो मुझे sentence बहुत अच्छी लगती है, that I want this is a gift from the women to the women, that she wants to dig a well in that village so that the women are comfortable, उनको दूर जाके पानी लाना नहीं पड़ रहा है. That is a tribute to that village who encouraged or welcomed these people, kept them for 3 years. From there, she travels to Australia because she finds that the person, now during her Malay experience, if they were traveling there, she meets this young man, Australian, who's, transporting prisoners from one place. He started option for the Japanese troops. So he's a truck driver helping the Japanese. Plus, like he has been captured, but he's just helping them out. And किस तरीके से वो इन लोगों को medicines चुरा के देता है. Finally, he's caught. He's flagged and he's crucified, supposed to be a death sentence. But that does not happen. Somehow he survives, and this girl comes to know when she goes back to Malay to build a well that he survived and he's in Australia. So she goes back to Australia looking for the love where she had got attached to this person.
and she waits. वहाँ पे this person is searching for this girl after the war ends, goes to London, and there he is indirectly directed back by her trustee that you go to Australia, because even he doesn't know whether they'll meet or not. So it's a story of hope where she's waiting, क्योंकि उसने जब मलय में था एक इंटरैक्शन में उसने बोला था कि मैं एलिस स्प्रिंग्स है वहाँ पे हूँ. That place is actually in Australia, Queensland. और वहाँ पे nearby there is a town जहाँ पे I stay, and he narrates. So this girl goes back to that town to find out her love. कि क्या पता he's there, he's settled. She has no idea कि whether he's married or he's not married, but she wants to give chance to that love, to that hope, that maybe I'll find that. So again, that is something. It just talks about that she fought for something that she believed in, and then last में how they meet, and she realizes कि ये town इतना भी interesting नहीं है. That is the next interesting part. जहाँ पे she has worked in a leather factory in London, because उसकी education ज़्यादा नहीं है. There is not much that she has studied. All she knows is as a secretary, as a typist. But she knows कि leather goods कैसे बनती हैं. तो वो अपनी inheritance use करती है to give back to this small outback community. कि धीरे धीरे इनको कुछ काम मिलेगा, because they don't have work, they are poor, and how from one thing to the other, then an ice cream parlor, then different छोटे-छोटे business, कैसे एक छोटा सा business बाकी चीजों को attract करता है, and all of a sudden it becomes a business town. It starts flourishing. So that is how the novel ends. I mean, they come together, the town flourishes, and that's how A Town Like Alice नाम उस book का है. Right. So I just hope I have made the summary proper, but this is the gist of it. जहाँ पे हर जगह like she's just hoping, and she's working, she's moving towards that hope. Right. So it's very clear that the plot is pretty layered, और उसके बड़े सारी सतहें हैं जो हर व्यक्ति के अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सतहें खुलनी चाहिए. आपकी कहानी से ये लग रहा है कि इसको कई एंगल से देखा जा सकता है. वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या क्या बीती लोगों पर, उस दृष्टि से देखा जा सकता है. इसको एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है कि आप को इनहेरिटेंस मिलने में, पेरेंटल इनहेरिटेंस मिलने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, सोसाइटी आपको किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं. फिर जो प्रिजनर ऑफ वॉर के एंगल से भी देखें तो ये पूरी एक अलग सी कहानी दिख रही है. लेकिन ओवरऑल, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि दो चीज़ें जो बहुत स्टैंड आउट करती हैं वो है यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द टर्न्स एंड ट्विस्ट दैट ए नॉर्मल ह्यूमन लाइफ कैन टेक. तो ये जो बार बार आप देख रहे हैं कि भाई वो लंदन में उसकी क्या कंडीशन है, फिर वो मलय जाती है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, फिर वो वापस लंदन आती है. तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग टाइम पर, उसके जीवन के अलग अलग हिस्से में कहानी किस तरीके से मोड़ लेती है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. और यदि हम आज के अपने संदर्भों में काट कर देखें, और मेरे ख्याल से फिक्शन की यही ब्यूटी भी है कि वो आपको एक यूनिवर्सल कैनवस देती है चीज़ों को देखने का. एंड एक्चुअली मैं अभी कहीं फिक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में कहीं पढ़ रहा था. सो पीपल आर सेइंग कि फिक्शन पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो अपनी अनुभव हैं वो बहुत सीमित हैं. लेकिन जब आप फिक्शन पढ़ते हैं तो आपको और हज़ार लोगों के अनुभव क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका मन कहीं ना कहीं एक जो एम्पैथी है वो डेवलप करता है कि इन कंडीशंस में उन लोगों ने जिया है, इन मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में 3-3 साल रहे हैं. दे डिडंट नो कि वो कल का सूरज देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे. स्टिल दे कुड कैरी देमसेल्व्स ऑन. एक और जो साइकोलॉजिस्ट थे विक्टर फ्रैंकल, उनकी जो किताब मुझे भी याद आ रही है, इन सर्च ऑफ मीनिंग, उनके उसके आधे हिस्से में भी वो जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में उन पे बीती है उसकी कहानी है, और उसमें कैसे उन्होंने फिर लोगोथेरेपी एज अ थेरेप्यूटिक टूल कैसे उन्होंने डेवलप किया सेकेंड पार्ट में,
वो दिखती है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी, और आई एम श्योर एनीवन हु रीड्स फिक्शन, उनको किसी और के जीवन के अनुभव बहुत ही छोटे समय में सीखने का एक जो मौका है वो मिलता है। और इस स्टोरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। बट इट्स वेरी क्लियर व्हाट अट्रैक्टेड यू मोस्ट is the fact that anything can happen in life, but then hope is Yeah. something which keep you moving. Can you recall any specific episode from the book which basically stands out for you? जो एपिसोड, देर आर अ लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे कहेंगे कि जहाँ पे एपिसोड्स हैं जहाँ पे आई कैन रिकॉल। एक इंटरेस्टिंग एपिसोड जो मैं रिकॉल करती हूँ स्टार्टिंग में ही है बुक में, जहाँ पे वो बोलती है अपने ये लॉयर को कि जब हम मलय में थे, वी वर देयर एंड देयर वाज नथिंग, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर जगह इट वाज डिस्पेयर, खाना कब मिलेगा, मॉस्किटोज थे, बच्चे they were dying of dysentery, they did not know, they did not have proper food. So उस वक्त वो बचपन में जब उसकी मदर घर के पास एक आइस स्केटिंग रिंग था लेके जाती थी, she would just remember that memory to keep her hope alive. She would feel good कि वो जो मेमोरी है, so एक वो बहुत अच्छा था। एक चीज जो वो बोलती है कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं अबाउट प्रिजन कैंप्स, लेकिन आउटसाइड प्रिजन कैंप्स क्या हालत हुई लोगों की, जैसे इन लेडीज की कहाँ से कहाँ गए, वो उसके बारे में वो टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि प्रिजन कैंप्स में फिर भी खाना था, यहाँ पे उनके पास वो भी नहीं था। They did not have, एक जगह पे एक विलेज में they are supposed to sleep with dogs and pigs, क्योंकि villagers are not ready to share their homes, इतने सारे लोग हैं। So वो जो चीज है वो एक इम्पैक्ट। देन एक इम्पैक्ट है जहाँ पे जब जो धीरे धीरे जो एक पर्टिकुलर एपिसोड है जो मलय में है, जो जहाँ पे ये लोग ट्रैवल करते हैं एंड ये लड़की थोड़ा रियलाइज करने लगती है कि हम लोगों को ये लोग कहीं लेके नहीं जा रहे हैं। एंड द टाइम व्हेन जिस फैमिली को ये लेके चल रही है उनमें से आई मीन एक बच्चा मर जाता है। सो हाउ शी इज लुकिंग एट डेथ फ्रॉम अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे, वो एक एपिसोड है। एक एपिसोड जो मुझे जो अच्छा लगा है वो है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया में आती है अपने लव को ढूंढने के लिए, देयर इज अ पॉइंट वेयर शी डजंट नो कि है नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट देयर, वो लंदन गया हुआ है ढूंढने के लिए। दैट इज अगेन होल्डिंग ऑन टू समथिंग, वेटिंग एंड मेकिंग द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन। सो ये जो छोटे स्मॉल लिटिल इंसिडेंसेस हैं, they really hold meaning totally कि किस तरीके से उसने किया है। कई बार होता है कि वो छोटी चीज भी आपको, जैसे आपने कहा फिक्शनल, अब फिक्शनल नॉवेल इज हाउ यू इंटरप्रेट इट, हाउ यू रीड इट। जैसे इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज एब्सोल्युटली फेमिनिस्ट, इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज कैपिटलिस्ट, की कैसे एक वाइट लेडी ने आके ऑस्ट्रेलिया में उसने कहा कि मैं बिजनेस शुरू करती हूँ, इट कुड बी। बट मेरे लिए पूरी नॉवेल में है कि हाउ वो रिलेशनशिप्स बनाती है, कैसे वो सिंपल तरीके से अपना जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो उसको आता है, उसको लेदर मेकिंग का आता था, वहीं से उसने शुरू किया। मलय में उसको मलय लैंग्वेज आती थी बिकॉज हर मदर एंड हर फादर हैड स्टेड देयर एज चिल्ड्रन, मदर हैड एनकरेज, तो दैट शी यूजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी एल्स। सो वो एक इनहेरेंट जो स्पिरिट जो आपके पास है उसी को यूज करके मेकिंग द बेस्ट। एंड एक इन सारे एपिसोड से एक छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे जो मुझे जो इंस्पायर करती हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कुछ बड़ा करें या कुछ, बट वन सिंपल स्टेप कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जस्ट वन थिंग, एक दूसरे की लाइफ में, शायद एक हमारी लाइफ में एक छोटा सा स्टेप आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वेरी ट्रू। सो बेसिकली आई मीन स्टोरी में, और चूंकि वो लिख दी गई है तो शायद हमारे कई श्रोताओं को लग सकता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन यदि आप देखें तो हर व्यक्ति की कहानी यदि वो लिख दी जाए तो उसमें नॉवेल का जो मटेरियल है, वो कंटेंट है, वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि
इस कहानी को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है वो इसकी ऑर्डिनरीनेस है, इसकी हाँ जो साधारणता है वही कहीं ना कहीं इसको असाधारण बनाती है। और मुझे हाँ लगता है कि बिल्कुल। ये जो एक मैसेज है इसका, कि हम सब कैसे साधारण लोग असाधारण परिस्थितियों में असाधारण बन जाते हैं, लेकिन हाँ दिक्कत ये है कि हमारी जो असाधारणता है उससे हम खुद ही परिचित नहीं होते, बल्कि वही लगता है कि इट्स वेरी ऑर्डिनरी। बट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी ऑर्डिनरी, टू लिव एन यस ऑर्डिनरी लाइफ एंड येट अचीव what is very difficult to achieve। उसके पास जो भी था, जो रिसोर्सेज थे, उसका उसने बेस्ट इस्तेमाल किया। और आपने जो एक इंटरेस्टिंग कोट था कि इट इज़, जब उसने कहा कि हम मलय में वो 3 साल रही थी जिस गांव में और बड़ी बुरी हालत में रही थी, वहाँ एक चीज़ जिसने उसको स्ट्राइक किया कि मैं वहाँ जो है वो, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, मुझे इनहेरिटेंस में पैसे मिले हैं और मैं वहाँ की महिलाओं के लिए कुआं खुदवाना चाहती हूँ। इट विल बी ए गिफ्ट फ्रॉम वुमेन फॉर वुमेन, और यू नो। सो ये जो एक स्पिरिट है सॉलिडारिटी की, कामदारी की, जो एक स्पिरिट है, जो मुझे लगता है कि इम्पैथी से ही आती है, और एक जो जज्बा है टू गो बियॉन्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर टू इम्पैक्ट लाइव्स। तो मुझे लगता है कि एक जो हम एम्पावरमेंट के थियरी में जो हम बात करते हैं ना, पावर टू डू समथिंग एंड पावर विथ someone, you know, so power to do and power with, ये जो वाली चीज़ है, मुझे लग रहा है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी कैरेक्टर में बहुत क्लियरली ये चीज़ निकल कर आती है। कल कर आती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आपने कहा ऑर्डिनरी, आप ये किताब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता चला जाता है। पढ़ी लिखी नहीं है वो, 6th स्टैंडर्ड के बाद वो नहीं पढ़ी, फिर भी उसने अपना जो था, जो चीज लिमिटेड थी, उससे उसने अचीव करा, जो मिला, जो उसको बेस्ट लगा कि इस तरीके से कर सकते हैं। पर मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी कि जब आपने इसको 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा और अब आपने उसको एनालाइज किया, द परसेप्शन ऑफ योर इज चेंज फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम। You can understand and analyze different aspects of life which were not so clear to you at that time. You can analyze the woman, you can analyze the society, you can analyze the area which she want to work, and she has the empathy, all these things while a child. Or you can say like this, the writer has so much of depth. जितनी बार उसको पढ़ो आपको हर बार एक नई चीज देखने को मिलती उस कैरेक्टर के बारे में। तो he has crafted in such a beautiful way that everyone is looks like कि मैं भी इस कैरेक्टर में हूँ और मैंने भी ऐसा किया है या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। That is the beauty. Rightly said, मैम, आपने बिल्कुल सही बोला। एंड इसीलिए बार बार शायद हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी बुक, तो बुक्स काफी पढ़ी हैं, लेकिन लगा मुझे कि ये बुक, क्योंकि उस वक्त पढ़ी थी तो इम्प्रेशन कुछ और ही था, और उसके बाद दोबारा जब ये किताब पढ़ी और अब मैं जब भी कभी भी पढ़ती हूँ, सो इसीलिए क्योंकि ये एकदम ऑर्डिनरी लोगों से रिलेटेड है, ऑर्डिनरी विमेन है जिनको जो बेसिक नेसेसिटीज था अपना, और किस तरीके से उन्होंने जाके चेंज करा, किस तरीके से जाके उस लड़की ने अपने आप को चेंज करा, अंडरस्टैंड किया सिचुएशन। सो वो हर बार पढ़ने में एक डिफरेंट एस्पेक्ट डेफिनेटली मिलता है। Somebody is asking in the chat box what is the name of the book and which we are discussing. The name of the book is Town Like Alice. Just to somebody is asking. I can see that some of us may not have actually received the invite, which gives a detail. It's perfectly fine, and you're welcome. Even if you don't, you're not aware of the context, but I'm sure there would be some takeaways from each one of us. So Tanya, coming back on the book, any interesting statement? I mean, right now we just talked about episodes, but any interesting statements which you find very useful or intriguing or deeply layered or something of importance? Interesting, like I said, जो मुझे जो later on लगी, एक तो a gift
from women to women, काफी लेयर्ड है ये. True. क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रही थी कि जिस तरीके से लेडीज ने उनको एक्सेप्ट किया उस वक्त 3 साल, लिमिट उनके खुद के लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वहां पे वो एज अ वुमन, बेसिक जस्ट एज सिंपल वुमन, शी इज रीचिंग आउट टू देम. और दूसरा जो मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, एग्जैक्ट कोट में याद नहीं अभी आ रहा है, बट इट इज लाइक यू कांट फाइंड happiness unless until you just pursue it. कि आपको कहीं ना कहीं वो pursue करना पड़ेगा. तो वो एक चीज है, I mean not words, exact words, but words to that impact वो quote था. वो एक बहुत अच्छा कोट था. एक कोट जो मुझे मल्टी लेयर्ड लगा, और जब भी एज अ साइकोलॉजिस्ट जब मैं पढ़ती हूँ, वो है कि इवन अ प्रिजन लुक्स ब्यूटीफुल, इट फील्स गुड व्हेन इट इज ब्यूटीफुल. क्योंकि वहाँ डॉक्टर बता रहा है कि प्रिजन में थे और वहाँ पे डॉक्टर, और वो पगोडास दिखते थे सनसेट में, और वो लोग जाके बैठते थे. सो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि हम लोग जब अपनी लाइफ में कई चीजों में वी फील दैट देयर इज अ प्रिजन, so if something to look at beauty, I mean which is being provided, that prison will not look so difficult. True. And So, I think that's wonderful. क्योंकि प्रिजन में भी आप क्या देखते हो? कई लोग जिंदगी में प्रिजन देख रहे होते हैं, देख रहे थे, और कई लोग प्रिजन में जिंदगी देख रहे होते हैं. देख रहे होते. तो आप कहाँ से क्या चीज़ पकड़ते हो, कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर करती है? वो एक बहुत क्रूशियल है. वो पैसेज आई रिमेंबर विच यू आर टॉकिंग अबाउट, कि वो दे वर लुकिंग थ्रू द विंडो एंड दे कैन सी ब्यूटिफुल थिंग्स आउटसाइड, एंड देन दे रियलाइज, after they savor every bit of it, then they realize that actually they are sitting in prison, and then they realize it's not so bad actually, because you can see the marvels of nature all around you. So मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक अवे है जो आप ये कह रहे हो, कि हम जहाँ हैं वहाँ ढूंढ क्या रहे हैं. क्योंकि यदि हम अब बुरा ढूंढ रहे होंगे तो स्वर्ग में भी हमें बुराई दिख जाएगी, और यदि अच्छा ढूंढ रहे होंगे तो आपको नरक में भी कुछ न कुछ अच्छा दिख जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये मैसेज कि नरक और स्वर्ग आपके अंदर है, और आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर की ही प्रोजेक्शन है. तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो ये चीज़ भी आपकी बात से जो है वो हमारे ऑडियंस तक ये बात पहुंच रही है कि एक्चुअली परिस्थितियाँ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि मनस्थितियाँ. मनस्थिति, कौन सी परिस्थिति में आपकी मनस्थिति क्या है? एक चीज जो बार बार मुझे लगता है रिकरिंग थीम है आपकी प्रेजेंटेशन में. आपकी प्रेजेंटेशन जब शुरू भी नहीं हुई थी, तो जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे, तब से लेके अब तक एक जो चीज बार बार आ रही है वो ह्यूमन विल, ह्यूमन स्पिरिट और होप, इंड्योरेंस, रेजिलियंस. ये जो कीवर्ड्स हैं, आई कैन सी दैट दीज कीवर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड ऑफन टाइम्स. सो इट्स वेरी क्लियर कि खासकर ये जो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, हम पोस्ट कोविड भी नहीं कह सकते बिकॉज इट्स स्टिल गोइंग ऑन. तो उसके सिचुएशन में खास करके होप की इम्पोर्टेंस फिर से हम सब ने समझी है. और मुझे लगता है कि इस तरह की किताबें जो ये बताती हैं कि लोग विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन पकड़ के रखते हैं, और उसी के सहारे वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, गिवन देयर लिमिटेड एजुकेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बट एक विश्वास कि कल जो है वो आज से बेहतर होगा. ये जो एक सोच है, चाहे जैसे इसमें प्राइमरीली तो ये प्रेम कहानी है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एक प्रेम का धागा है वो जोड़ के रखता है कि कल जो है वो शायद हमारे लिए बेहतर होगा. मुझे लगता है कि ये जो है वो रिकरिंग थीम है इस कहानी का. Any specific thing which you think I should have asked and I didn't ask? I think this is time to share it, and then we open the floor for discussion. Yeah. उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और ऐड करूंगी. When you were saying, I just remembered कि एक जगह पे ये पूछती है अपने ये लॉयर से कि all this is it worth fighting for? I mean मैं इतना कर रही हूँ, और वहाँ specifically जब वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, so he just says something. You will never know what is its worth till it is the end of the life. When you reflect back, you realize that everything has been worth. Whatever we have fought for, whatever we have done, it is always towards the end that
the emphasis and everything comes to. So again it talks about hope. I mean हम लोग कई बार बहुत effort डालते हैं कि क्या है, but when we look back we realize कि it was worth it. So actually तान्या, आपकी इस बात से I got reminded of a poem by a famous lyricist अंजान. अभी जो समीर है ना, बहुत बड़े lyricist, उनके फादर हाँ, अंजान okay. की एक पोएम की शुरू की लाइन है कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ. जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ. फैसला होने के पहले हार क्यों स्वीकार कर लूँ. है ना. Wow, तो वो जो एक आइडिया है कि फैसला तो अभी हुआ नहीं, और फैसला तो मरेंगे तभी होगा, और उसके बाद तभी किसने होगा. देखा है. बट तब तक एक्चुअली द एफर्ट इटसेल्फ बिकम्स अ गोल एक्चुअली. yes, And actually. if it gets realized, it's well and good. But then, even if it gets realized, you don't know whether it got realized because it had to get realized or because that's the way it should have been. So I mean, the effort itself जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमको इंस्पायर करते रहना चाहिए. ये मुझे लगता है जितने भी लिटरेरी पीसेज हैं उसमें कहीं ना कहीं इनहेरेंट मैसेज यही था. यू वर अबाउट टू से समथिंग. या से. हाँ, जैसे आपने बोला कि एफर्ट है उसको करते रहना चाहिए, एंड व्हाटएवर द रिजल्ट्स आर, समटाइम्स इट इज आल्सो अबाउट माइंडसेट. बिकॉज कई बार होता है कि हम एफर्ट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, बट माइंडसेट नहीं होता है टू रिसीव इट. वी हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि नहीं कर दिया, बेकार गया. Whereas you see the results, and as the results keep on coming, आप mindset पे बहुत depend करता है कि how you receive, आप कैसे उस एक चीज को receive कर रहे हैं. जैसे मैं अपने sessions में हमेशा बोलती हूँ, जब लोग बोलते हैं कि आप basically बताइए cognitive behavior therapy का concept ही क्या है, तो मैं यही बोलती हूँ कि basic concept ये है कि आप अपनी environment नहीं change कर सकते, आपको अपना नजरिया change करना पड़ेगा, how to deal with that environment. क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी सारी चीज चेंज होगी तो वो तो नहीं होगी. सो वो एक भी जो आपने अभी बोला, दैट एफर्ट्स गोइंग ऑन एंड रिकॉग्नाइजिंग योर एफर्ट, सेलिब्रेटिंग, इससे थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रही हूँ, बट अगेन बिकॉज मुझे नेवल शूट की नॉवेल्स इसीलिए भी पसंद है कि हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उस एफर्ट को कभी अपने आप को प्रेज नहीं करते हैं. We don't praise ourselves, and which is not good, because कहीं ना कहीं हम बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, कोई दूसरा रिकॉग्नाइज ना करे, बट हमें अपने आप को वो एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है. So you are absolutely right, Tanya. Basically क्या है कि we have become too harsh with ourselves. हमको लगता है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आई शुड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ. बट मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जो डेली सक्सेसेस है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अल्टीमेट सक्सेस. जैसे जो जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं बात करता हूँ उनको लगता है जब नौकरी लग जाएगी ना तब सक्सेस होगा, फिर उनको लगता है प्रमोशन हो जाएगी तब सक्सेस होगा. तो वो सक्सेस का कोई मोमेंट होगा. यदि आपका हर मोमेंट सक्सेसफुल नहीं, आज के लिए आपने जो सोचा था यदि वो आपने तय नहीं किया है, तो कोई एक्स टाइम तो आने वाला नहीं कि ऐसा हो जाएगा तब ऐसा हो जाएगा. तो आप जब तक डेली सक्सेसेस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का एक ज्ञान था ना कि अपनी तारीफ खुद करो, बुराई करने के लिए कई कमीने बैठे पड़े हैं, तो वो तो पड़े हुए हैं ही. बट देन द पॉइंट ये है यहाँ पे जो आप कह रही हैं कि रिजल्ट्स को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं. यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि रिजल्ट की जो मेरी परिभाषा है वही बहुत संकीर्ण होती है, वही बहुत नैरो होती है, क्योंकि रिजल्ट की परिभाषा भी ना मेरे लिए कोई और तय करता है. कभी पेरेंट्स तय करते हैं, टीचर तय करता है, सिस्टम तय करती है, मेरी कास्ट, मेरी कम्युनिटी, मेरा कॉन्टेक्स्ट. सक्सेस की या रिजल्ट की परिभाषा कोई और देख रहा होता है. प्रॉब्लम ये है. लेकिन यदि मेरे लिए रिजल्ट की परिभाषा ये है कि आज मुझे ये चीज़ें कर लेनी है और मैंने ये चीज़ें कर ली है, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ रीजन टू सेलिब्रेट, यू नो. क्योंकि वो बोलते हैं ना कि उत्सव मनाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए. अब आप मौसम ढूंढोगे तो वो पता नहीं वो कब मौसम आएगा, कब पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे कि हाँ बेटा अब सेलिब्रेट करो. तो अब ऐसा सेलिब्रेशन का तो मौका कुछ आएगा नहीं. सो आई मीन यू आर बैंग ऑन व्हेन यू पॉइंट आउट कि एक्चुअली नज़रिया जो है वही सारी चीज़ों को तय करता है. तो अनलेस
you have smaller goals, and this whole idea of self efficacy model हम psychology में पढ़ाते हैं अल्बर्ट Psychology. बेंडूरा का, and we talk about three things through which self efficacy gets enhanced, and one of those things is performance accomplishment. छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज में जो हमें सक्सेसेस मिलती हैं. सो इफ यू जस्ट वी गो बैक टू द प्रोटैगनिस्ट वंस अगेन, टाउन लाइक एलिस में उसको जो छोटी छोटी सफलताएं मिलती रहती हैं, जिसने उसको कंप्लीटली निराश होने कभी नहीं दिया. तो मुझे लगता है कि वो एक जो सेंस है, वो कहीं ना कहीं वो जो दिया है वो अंदर ही है. बाहर हम ढूंढ रहे हैं, तब तो फिर बाहर तो आंधी तूफान ही है, वो बुझने पे ये चीज़ें चली हुई. आपने अंदर उसको यदि आपने संभाल के नहीं रखा तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. I guess now it is time for we can have a 7 minutes discussion now. Audience, this is audience time now. You can reflect on whatever we have discussed so far. You can ask a question to anyone present here. Any opinion, any afterthought, please. You can unmute yourself and ask it. Or if you're not comfortable unmuting and asking, then you can put your question in the chat box. Our team, which includes people here, they can get back to you. कोई कमेंट, कोई और चीज़ हमारे कोई साथी कहना चाहें किसी भी भाषा में, प्लीज फील फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस. जब तक बाकी लोग सोच रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी. शौरी का एक सवाल है मैम. शौरी पूछ रहे हैं कि तान्या वुड बी एबल टू आंसर. शौरी पूछ रहे हैं कि इस बुक का नाम टाउन लाइक एलिस क्यों है? ये बुक का नाम टाउन लाइक एलिस है बिकॉज एलिस स्प्रिंग्स एक टाउन है, वहाँ पे एक्चुअल टाउन है, और यहाँ पे ये लड़की जो प्रोटैगनिस्ट है इसका नाम एलिस है, और ये एक टाउन क्रिएट करती है जहाँ पे यही छोटी छोटी बिजनेस से शुरू करके एक बिजनेस से कैसे बाकी बिजनेसेस अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप शुरू होते हैं और एक वो टाउन बन जाता है. तो इट इज अ ट्रिब्यूट टू दिस गर्ल स्पिरिट, इसलिए अ टाउन लाइक एलिस. ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, और एनी अदर कमेंट? अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है. सही बात है, सही बात है. एक कमेंट है रमन की तरफ से. रमन कह रहे हैं कि स्मॉल सक्सेसेस सेलिब्रेट करनी चाहिए. आर्मी जनरल का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वो सुबह अपना बिस्तर बहुत बढ़िया से बनाता था और लौट के आता था तो यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट ही हैज अकम्प्लिश्ड वन टास्क ऑफ मेकिंग हिज और हर बेड परफेक्टली. या राइट. और कोई चीज? सॉरी, somebody was about to say. हाँ प्रकाश जी कहिए. यस सर. हाँ प्रकाश. सर मेरा क्वेश्चन तान्या मैम के लिए है. हाँ प्लीज. दो वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्शनल नोवेल एंड स्टोरीज, so fiction. So when the previously ma'am introduced that ma'am is a psychology consultant and a very good experience. Then I have a question. It may be the out of topic, but this is related to fiction. When you were ma'am, when you are taking sections of your patients, then is there anything comes to you that they believes in paranormal? There is some fiction that paranormal activity. I am working on that. It's about 4 years ago. Till now I am working on that. So it is very related to the psychology. Though you are so experienced, so I have a question that is any paranormal cases comes across to you, how do you handle it, and how is there how your the opinion on the result? देखिए प्रकाश जी, when we talk about paranormal activity, मैं completely deny नहीं करूंगी, but हम लोगों को जो cases आते हैं, काफी सारे वो जो cases होते हैं, they are psychology based. तो कहीं पे inbuilt there is a breakdown जिसकी वजह से जिस इंसान ने अपना प्रोजेक्शन कर लिया है. जैसे हम लोग स्लीप एपनिया के बारे में बात करते हैं. स्लीप एपनिया में भी ऐसा लगेगा कि उस इंसान को कि उसका बॉडी स्टिफ हो गया है, रिजिड हो गया है, वो उठ नहीं पा रहा है, और ये सब सोने के टाइम ही होता है कि जैसे उसको किसी ने कंट्रोल कर लिया है. इसको कई लोग जब आते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि ये भूत बाधा है या कुछ है, बट जब क्लिनिकल हम लोग जब उसको एनालाइज करते हैं तो वो इट इज मोर टुवर्ड्स स्लीप एपनिया, एक कंडीशन जहाँ पे somebody has gone into sleep too much of stress, जिसकी वजह से the body function and पूरा जो मसल्स हैं वो रिजिडिटी में
फॉर्म हो गई है। ब्रीफली मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो हाँ, ये होता है, एक दो बार हुआ है कि जहाँ पे पेशेंट्स ने बोला है कि दे हैव कि हम लोगों को स्पिरिट्स आती हैं और वो आता है, लेकिन देयर इज नो थिन लाइन जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो लोग इमेजिन कर रहे हैं, यानी एक्सेप्ट फॉर एक अगर हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट लें कि कहीं वो हेलुसिनेट तो नहीं कर रहे हैं। और बहुत कुछ यहाँ पे मैं कहूँगी विश्वास पे भी डिपेंड करता है, यस मैम। सेंसरी परसेप्शंस पे भी डिपेंड करता है। मैम हाँ, यस मैम, मैं मैम 4 साल से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो साइंस क्या कहती है कि 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। तो वो साइंस से उसे अभी तक 30% एक्सप्लेन किया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, हमारे आसपास ही हो रही है। तो आपके पास जब कोई पेशेंट आके बता दे कि ये बात पूरा वो 100% श्योर होके बता दे कि मुझे कोई दिख रहा है कि ऐसे कुछ फील हो रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जो भी पेशेंट बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेसिक ग्राउंड रूल होता है, वी हैव टू टेक देम सीरियसली। हम लोग उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे माइंड कह रहा है कि नहीं ये शायद बकवास कर रहा है, तो वो कह रहा है कि हमें ये फील हो रहा है, ये चीज हो रहा है, उसको नोट डाउन करके सीरियसली पहले लेना होता है। उसके बाद एनालाइज करना होता है कि ये कोई मेडिकल कॉजेज की वजह से तो नहीं हो रहा है, जैसे सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स जो विच आर प्रोमोटिंग इट, तो उसका हम लोग फिर हिस्ट्री पूछते हैं कि आपने कोई दवाई ली, आपको कोई चोट लगी, आपको बचपन में कभी एपिलेप्टिक अटैक्स आए थे, तो वो जो मेडिकल हिस्ट्री है वो जाननी जरूरी हो जाती है। उसके साथ साथ फिर अगर मेडिकल हिस्ट्री क्लियर है उस इंसान की, तो फिर हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे पहुंचते हैं कि कुछ ट्रॉमा है, कुछ है। और अगर वो भी नहीं है तो इट इज अ क्वेश्चन कि ठीक है, आपको कैसा लगता है। उस वक्त ये होता है कि उस इंसान को हमको सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। एंड जैसे अगेन कहते हैं एक नजरिया, तो मेरे पास अभी तक एक ही सिमिलर केस आया वेयर जो पर्सन वाज मेडिकली अगर हम लोग कहें तो एवरीथिंग वाज क्लीन, एंड साइकोलॉजिकली उसके हिसाब से और जितना हम लोग दिख कर पाए, इवन साइको एनालिटिकल टेस्ट से, प्रोजेक्टिव टेक्निक से, कुछ ट्रॉमा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको फील होता था कि देयर समबडी अराउंड। सो उसमें यही था कि उसको फियर फैक्टर्स बहुत ज्यादा था। सो उसका फियर फैक्टर को हटाने के लिए द फोकस वाज कि आप किस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आप भगवान पे विश्वास करते हैं, आप उनको मन में लाके अपनी प्रोटेक्शन आप क्रिएट करिए, आपको फियर नहीं होगा। तो बेसिकली आई डेल्ट विद दिस फियर बिकॉज बाकी चीज हम लोग नहीं डील कर सकते। Right. I think, Prakash ji, if you have further questions in this area, I would recommend you to catch up with Tanya on some other Yes, sir. occasion. Yes, sir. I'm going to ask that. How can I contact Tanya Okay, so ma'am? Because you they're can very nice. you can be in touch with the one of ISTD members in Chandigarh. We will share the contact email address of Dr. Tanya, and you can take it on from there. We have one more minute before I hand it over to Gunmala ma'am for final closing thing. Any other question? Any other question, please? हाँ, मोहन जी बोलिए. Yeah, मेरा just one comment, Please, sir. एक तो सचिन कुमार जी ने बहुत अच्छा, हमको अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि भाई हमको छोटे छोटे सक्सेस जो हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अब आप ये सोचते हैं कि मैंने 10 सक्सेस मिल जाए उसके बाद सेलिब्रेट करें, तो वो चीज अच्छी बात नहीं है, छोटे सक्सेस। और दूसरा तानिया मैम का कि आपका माइंडसेट, उन्होंने कहा कि जो प्रिजन में भी आप एक होप देख सकते हैं, वो बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि आपका माइंडसेट उस तरह का होना चाहिए कि प्रिजन में भी आप जो है पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि प्रिजन में भी आप होप देख सकते हैं, और उससे भी आपको लगता है कि प्रिजन में भी आपको प्लेजर मिल सकता है, जो है वो नजरिया, उस तरह का नजरिया होना चाहिए, जो है। बिल्कुल मोहन जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। मुझे फैज साहब का याद आता है कि जब फैज अहमद फैज साहब जेल में थे तो उनको जो बाहर से, खिड़की के बाहर से फूलों की खुशबू आती थी, उससे इंस्पायर्ड होकर के वो गज़लें जो है वो लिखते थे। और तानिया भी यही कह रही थी कि कैसे बहुत सारी किताबें लिखी गई है जेलों में बैठ कर के। सो एक्चुअली वो जीवन भी बहुत प्रोडक्टिव और यूज़फुल हो सकता था। गांधी जी की किताबें, बहुत बड़ा हिस्सा जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखी, वो जेल में बैठ के लिखी। जेल में बैठ के। सो आप
का जो जगह जहाँ पर लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं वही लाइफ का पार्ट कई बार लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं, जी लेकिन हमको ये जो आपने कहा कि फिक्शन जी से जो सेटिस्फेक्शन आता है, जी और जी जी फिक्शन से जो आपके जो लाइफ, आपने बहुत सही कहा कि लाइफ के एक्सपीरियंस, आपको अपना एक्सपीरियंस है। जो साइंटिस्ट हमारे, आई एम ए सीमेंट साइंटिस्ट, आई एम ए फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जी सर उसका मैं डायरेक्टर जनरल रहा हूँ। जी तो लेकिन काफी मैं फिक्शन भी पढ़ता रहा हूँ, 50 ईयर से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। जी तो आई एम नाउ 72 ईयर्स ओल्ड। तो ओके तो तो जो आपने बहुत कहा कि आपको जो एक्सपीरियंस जो फिक्शन से आता है वो किसी चीज से नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू एक सर, चीज और थैंक यू। जानना चाहूंगा कि ये ज्ञानशाला के आप जैसे ये क्या सीरीज ऑफ, इसमें कुछ सीरीज है क्या ज्ञानशाला जी का? सर, क्योंकि एक्चुअली ना आईएस जो हमारी इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का चंडीगढ़ चैप्टर है, जी, उसके सर 2 रेगुलर फीचर हैं जो हर महीने करते हैं। वेरी एक गुड, वेरी गुड। विचारशाला है जिसमें एक विषय पे एक एक्सपर्ट से चर्चा होती है, और एक जी ज्ञानशाला है जिसमें एक बुक पे चर्चा करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उस किताब में बिल्कुल घुसा हुआ है, उस किताब को अच्छे से समझता है। तो ये सीरीज है सर जो हर महीने के आखिरी हफ्ते में यूजुअली हम लोग करते हैं। ये दूसरा है सर। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमको थोड़ा सा अब लगता है जी कि बीइंग ए साइंटिस्ट, हमको जी लगता है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जी इन दोनों में बहुत कॉमनलिटी है। जी तो मैं भी चाहूंगा कि अगर कोई कांटेक्ट मिल जाए जिसके थ्रू मैं कुछ इस पर बात कर सकूं कभी जी जी कभी, जी जो है, जी या आप हाँ, बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ठीक है, इस बारे में जो भी नेक्स्ट चर्चा होगी हम आगे करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ ठीक। टाइम टू क्लोज। मोहन सर, मैं आपको अपना सचिन, ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, या मनीष जी से ठीक रिक्वेस्ट करूँगा कि मनीष जी हम में से किसी का भी आप उसमें डाल दें, हाँ, और सचिन फिर मोहन जी से हम बात करेंगे। जरूर सचिन सर, मैं जरूर। अपना नंबर डाल रहा हूँ, और जी ये व्हाट्सएप नंबर भी है। जी और भी लोगों को क्या नाम है, रेगुलर इसके लिंक्स भी चाहिए कि इनवाइट जो है वो हम रेगुलरली उनको इनवाइट दे देंगे। अगर व्हाट्सएप पे हमारे को नंबर दे दें तो हम ज्ञानशाला विचारशाला का जब भी सेशन होगा हम जी उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन और लिंक्स भेज देंगे जी। ठीक है। ठीक है, तो अगर खुद थैंक भी को लगता है कि वो किसी विषय पे बात करना चाहता है, वी कैन इनवाइट देम आल्सो, जैसे श्योर डॉक्टर मोहन जी। Sure. यू, So I थैंक यू। think thank you very much to all of you. Tanya, now it is time to hand it over to Gunmala ma'am. But any parting thoughts, any comments which you would like to leave us with? I think this was an amazing discussion. हम लोग बहुत करा, and आप सबने जो भी points बोले, in the end एक ही चीज है parting thought जो I feel is the positive mindset, जिसको आज की डेट में हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको, मतलब हर फील्ड में, हर जगह, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस कोविड की वजह से आई हैं और बहुत सारी चीजें आई हैं, तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट एक जरूरी, एक नजरिया की ठीक है सब कुछ हो जाएगा, इन दी एंड सही होगा, और एफर्ट मेक्स द होल लॉट ऑफ डिफरेंस। Thank you, Tanya, and taking your time off and preparing for this session. And I hope कि हम आगे भी इस तरह के sessions में we'll keep on discussing important stuff relevant for our lives. And जो आपने एंड में बात कही पॉजिटिव एटीट्यूड की, तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ नॉट ए रोमांटिक फिक्शनल थिंग, इट्स बेसिकली वेल रिसर्च साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। और वो कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी मजबूरी है। पॉजिटिविटी इज़ परहैप्स द ओनली वे टू एग्जिस्ट, अदरवाइज वी वोंट एग्जिस्ट। यदि आपको पता ही नहीं कि सुबह उठेंगे कि नहीं, तो आप रात में चने भिगो के नहीं रखेंगे, है ना। सो आइडिया ये है कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, hope and positivity is what keep us moving. And I would like to hand it over to Gunmala ma'am by quoting one of my favorite poetess, Maya Angelou. I'm sure आप में से कई लोगों ने माया एंग्लू को पढ़ा होगा। उनकी एक बहुत फेमस लाइन जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वो कहती हैं कि एक चिड़िया इसलिए नहीं गाती है, बर्ड डजंट सिंग बिकॉज इट हैज़ एन आंसर, इट सिंग्स बिकॉज इट हैज़ ए सॉन्ग। तो हमारे अंदर जो सॉन्ग कौन सा है, यदि वो पता चल जाए और उसी सॉन्ग को गाते गाते हम इस दुनिया से चले जाएं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। थैंक यू गुनमाला मैम, इट्स बैक टू यू। Okay.
Tanya wants to say something. Please, Tanya, take over. नहीं बस sorry I'm taking your a little time. बस No मैं worries. छोटा सा वो बोल रही थी कि हम लोग जो पॉजिटिव की मैं हमेशा जो लोग मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि हमने फ्यूचर इज लाइक अ प्रोबेबिलिटी 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव सो व्हाई नॉट थिंक ओनली पॉजिटिव नेगेटिव सोच के कुछ आने वाला तो है नहीं पॉजिटिव से मोटिवेशन पॉजिटिव से पॉजिटिव आउटलुक बहुत सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं सो उसको ज्यादा फोकस करके इंस्टेड ऑफ क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कुछ भी हो सकता है फ्यूचर इज नॉट इन आवर हैंड्स बट आवर थॉट इज आवर थिंकिंग इज इन आवर हैंड्स Absolutely, absolutely. थैंक यू सो मच Pleasure. Thank you, Tanya, for having you here, and you have spared your time. This is time to close. Before closing, I want to say positive, negative, all are part of life, but the focus is on the Gyanshala. Gyanshala means किताबें. किताबें जिंदगी का वो अस्त्र हैं जो बिना किसी घाव दिए किताबें जिंदगी का वो अस्त्र हैं जो बिना किसी घाव दिए हमें जीत हासिल कराने में सहायता देती हैं और ये किताबें जो हैं कभी हमें छोड़कर नहीं जाती मुझे एक चीज और याद आती है किताबें कई मुकाम चढ़ती हैं किताबें कई मुकाम चढ़ती हैं दुकान मंच महफिल में जाती हैं सम्मान पाती हैं पुरस्कार पाती हैं और हाहाकार से जैसे ही वो किताबें उतरती हैं दुकानों की शेल्फ में अपनी दराजों में हमारी आंखों में होठों में हथेलियों में और हमारे सिरहानों के पास पहुंच जाती हैं और वहां से हमारे मन में जिस दिन उतर जाती हैं तो वो छप जाती हैं किताबें जानती हैं कैसे पायदान उतरना है और कैसे पायदान चढ़ना है तो किताबें सो ऑन दिस बेसिस वी हैव गिवन द थॉट ऑफ ज्ञानशाला So thank you so much for everyone. I hope you people enjoyed the session and thanks to our guests for ending on such a beautiful note. Thanks a lot. Manish ji, anything from your side? जी मैम थैंक यू सो वेरी मच बस क्योंकि ये नजर आया जो मैम ने आज बताया कि वी कैन सेलिब्रेट ईच अदर्स लाइफ इट इज इम्पोर्टेंट एंड वी शुड मूव फॉर 5 minutes or 7 minutes a good book और a good story of any normal man क्योंकि मैं अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो मुंशी प्रेमचंद मुझे उसी में नजर आते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जो मैम उनके बारे में कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद हम सब कॉमन लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं जो सर ने बताया वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू मैम एंड टू ऑल आवर ऑडियंस मैम फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर माला मैम को ही कहूंगा कि प्लीज मैम यू गिव द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स थैंक यू Thank you so much to everyone. Thank you so much to participants. Everyone has enriched, and without you, this event can't be possible. Without your participation, without your questions, we cannot say the session is successful. So it is successful with your help and support. I hope you will be there in the next coming sessions. And so we are having a Sachin ji. Thank you to the background team, Shubham and team, who designed our creative and all technical things. So I mean, they are real backbones for our programs. Absolutely, absolutely. Thanks for reminding Sachin ji. So thanks everyone, and we are closing. Thank you. Thank you. Thanks. क्लिक कर दिया मैंने क्लिक